तो स्टैटिस्टिक्स नथिंग न्यू। स्टैट होता क्या वैसे, होता क्या, डेटा को कलेक्ट करना, इंटरप्रेट करना और फिर डिसीजन लेना। चलो ये बातें हम 8th 9th में छोड़ के आ गए हैं। अब मुद्दे पर आते हैं कि हमने करना क्या इसके अंदर, किस तरह का क्या क्या चीजें हमारे पास है। द वेटेज कैन बी बोर्ड वेटेज, द बोर्ड वेटेज कैन बी ऑफ 6 to 7 मार्क्स। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट बोर्ड्स, ठीक है। और जो आपकी अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन है या जो भी यू कॉल इट, ठीक है जी, उसमें इसकी वेटेज ज़्यादा होगी क्योंकि सारा सिलेबस तो नहीं आना, उसमें इसकी वेटेज जो है वो 10 मार्क्स की भी हो सकती है। तो ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है क्या क्या इसके अंदर। नाउ व्हाट वी कॉल इट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। राइट डाउन मेजर्स, ये पता होना चाहिए आपको क्योंकि एक नंबर वाले क्वेश्चन भी आएंगे। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कई बार थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो व्हाट आर दीज। नंबर वन क्या होता है, वैसे होता है रेंज। नहीं चलो रहने दो, छोड़ो आप, रेंज भी छोड़ो, सीधा मीन में आइए। मीन, मीडियन एंड मोड, नथिंग न्यू, बस थोड़ा सा डेटा हैवी होगा, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। मीन, मीडियन एंड मोड, दिस इज विल गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। मीन मीन्स एवरेज, ठीक है। मीडियन मिड वैल्यू, मोड इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली अक्कर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द मोड। अब जो मीन है, देयर आर मेथड्स एज पर द डेटा गिवन, एज पर द साइज ऑफ द डेटा गिवन। What are the methods? The method being, number one is direct method, in which we will directly multiply xi with fi. Number two is a shortcut method. We call it assumed mean method. Number three is step deviation method. We're going to study all the three methods: shortcut method, direct method, shortcut or assumed mean is one and the same thing, and the third one will be step deviation method. Same will be for the median, we have two methods. Mode again we have two methods, ठीक है। One is the 9th class वाला, another is the 10th class वाला होगा मेथड इसके अंदर होगा। तो let's start with mean। क्वेश्चन से शुरू करते हैं सीधे। Okay, what is first one? 5600. What this? 11480. 11480. What is this? 22500. 16. Tell me your first एक जीरो ज्यादा लाती। No, that is F. वो F था। Okay. This is 11,400. 11480. Okay. Yeah. 16340. 16340. 2250. Yeah, it is 22500. 18400. 18400. 9800. 9800. 5000. What we need to do, we need to add this. We call this sigma. This is summation. Now this is called summation. So this is nothing, this is addition of all the values. So sigma, what is the sigma? Summation of fi xi. सबको ऐड कर दो जल्दी से. And I want the summation of the frequency as well. 100, frequency is 100. Okay, yes. Add all. Is it 814 something? So 89120 is the addition of this. Now we'll apply the formula. This is we are doing by which means? By which method? Direct method. Very hard calculations. See the figure. Now the mean, we denote mean by x bar, and the formula is the same formula
sum of observation divided by total number of observation. We are denoting sum of observation by sigma fi xi, and total number of observation is nothing but the sum of all the frequency sigma fi. Speak up the formula. Speak up. Sigma xi. X bar यानी कि mean is equal to sigma xi fi upon sigma fi. So this is 891,200 when you divide it by this is 100 or no, it's single zero. Okay, when you divide it by 100, answer will be 891.2. This is the mean, this is the answer for this question. So now what assumed mean method, और यही बच्चों का फेवरेट होता है क्योंकि इसे क्या कहते हैं, शॉर्टकट मेथड. बच्चों को यही तो पसंद है, shortcut method. So what the method is? The method is we will introduce DI. अब देखो DI stand for xi minus a, where a is assumed mean. A is assumed mean. ठीक है, किसी ने कुछ लिखना नहीं है, ध्यान से देखना है. A assumed mean है. Assumed means assume किया हुआ, suppose किया हुआ. मीन का मतलब होता है सेंट्रल वैल्यू, बीच की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 3 3. सो a is equal to 900. A is equal to, we assumed, we suppose that a is to be 900. क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर ये तो 7 एंट्रीज थी, अगर 8 होती यानी कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती, नो प्रॉब्लम. सो यदि यू टेक द 5th और 6th डजंट मैटर. मीन में थोड़ा सा डेसिमल में फर्क पड़ेगा, आंसर विल बी वैलिड. ट्रस्ट मी, आंसर वैलिड होगा. ठीक है, यहां देखना है सबने, यहां देखना है बड़े ध्यान से. नाउ मेथड क्या कह रहा है, xi माइनस a, क्योंकि ये माना, और ये मेथड क्यों, व्हाई दिस मेथड, ये माना जाता है कि माइनस करने से चीजें छोटी होती हैं, मल्टीप्लाई करने से चीजें बड़ी होती हैं. इसलिए यू नो दैट पॉइंट टेकन इन माइंड. हमने क्या किया, सारी ऑब्जर्वेशन में से 900 माइनस कर देना है. जो आ रहा है आने दो, नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव आने दो. 800 माइनस 900, बोलिए, माइनस 100, माइनस 80, माइनस 40, 0. Here it will be 80, here it will be 20 positive, here it will be 100. कितनी आसान कैलकुलेशन बन गई, कहाँ इतनी हार्ड कैलकुलेशंस थी. Now the next column will be fi di. fi now इसका रोल खत्म, फिनिश, इसका रोल खत्म हो गया. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. किसको मल्टीप्लाई करेंगे, fi di. करो जरा मल्टीप्लाई. द फर्स्ट वन विल बी माइनस 700. नेक्स्ट करो जरा मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है जल्दी से. सो आप खुद देख रहे हो, द प्रीवियस मेथड यू कंपेयर बाय योरसेल्फ, कितनी हार्ड कैलकुलेशंस थी, कितनी वैल्यूज थी. कहाँ ये नेगेटिव, देखो जीरो भी मिल गया रास्ते में, 20 80, कहाँ इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूज. सिंपली मल्टीप्लाई आप कर पा रहे हो, सिंपली, है ना. ओरली, कईयों को तो ओरली, कहीं में थोड़ा यूज करना पड़ रहा है पेन. इनको ऐड करना है, आपको पता है, जो पॉजिटिव वाली चीजें अलग, नेगेटिव अलग करेंगे तो माइनस तो आ रहा है, माइनस 880. दिस इज सिग्मा fi di. सिग्मा fi di. Now stop your pen. Point to be noted. Most important step. देखो, ध्यान से देखो. द फॉर्मूला मीन निकालना है. कैसे निकालना है, फॉर्मूला फॉर assumed mean method. Every method have a different formula. Every method different formula. डायरेक्ट के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला. Don't mix up the thing. ठीक है. What the formula says, mean is equal to a plus sigma fi di upon sigma fi. याद रखना, इधर ध्यान दो, क्या लिखा है बोलो, a प्लस. ये a प्लस क्यों किया, कोई बता सकता है. माइनस किया था यहाँ, क्योंकि क्या किया था, तो मैथमेटिक्स कहते हैं इसे हिसाब किताब. ठीक है, कि यहाँ माइनस किया था, वहां प्लस कर दिया, ताकि द काउंटर फैक्ट इज 0. तो a की वैल्यू कितनी थी, 900 माइनस 880 डिवाइडेड बाय 100, 0 तो नो नीड टू टेक द एलसीएम. 900 माइनस 8.8 कितना आएगा, वही आएगा 891.20. दिस इज मैथमेटिक्स, irrespective of the method, answer will be same. So this is, we discuss what
shortcut method, assumed mean method. From the years, it is being favorite method for the all the students. ठीक है, तो देखो याद रखना xi fi question itself, third column is di, third column DI. stand for xi minus a. What a stand for? Assumed mean. The choice is your assume. Subtract each and every term from xi minus a. Get it? Then the last column will be fi di. Add them. Formula. Speak of the formula. A plus sigma fi di upon sigma fi. Do not forget to add a. Do not forget. So now the third method, same question, method 3. What the method is? Step deviation method. Bit complicated. थोड़ा सा देखते हैं पर कोशिश. Now same xi fi question, di same as we did in the previous method. Now again what we will do, we will find ui. What is ui? Ui is di upon h. What is di upon h? We have di with us. h find करना है. h क्या होता है? h होता है common factor of all di's. Write down h in the top. Write down h arrow. Common factor of all di's. Common factor of all di's. Now when it is about taking common, क्योंकि देखो हो क्या रहा है और हमें लगा क्यों रहे हैं, डिवाइड किया हमने, क्यों? पहले क्यों का जवाब. हमने देखा कि माइनस होने से चीजें छोटी होती हैं, एक और चीज से चीजें छोटी होती हैं, डिवाइड करने से. क्या करने से? अब पावर देखो, एज्यूम्ड मीन मेथड की इतनी पावर है कि वो 3 डिजिट वाले को 2 डिजिट बना देता है. क्या बना देता है? ऑलमोस्ट 2 डिजिट बना देता है. सोचो अगर पहली 4 डिजिट का दिया हो तो एज्यूम्ड मीन तो उसे 3 डिजिट ही कर पाएगा और स्टिल हमें फिर FIDI में फिर प्रॉब्लम आएगी. तो इसलिए अब इसकी इतनी पावर है, किसकी? स्टेप डेविएशन की, कि सीधा ही 3 डिजिट वाले को 1 डिजिट बना देता है. कितना बना देता है? 1 डिजिट. ठीक है, और 1 डिजिट से मल्टीप्लिकेशन के लिए मुझे तो नहीं लगता कि आपको पेन की जरूरत है, ओरली हो सकता है ना. तो दैट्स व्हाई द मेथड इज. सबसे पहले कौन सा हमने देखा? शॉर्टकट मेथड. नो डायरेक्ट मेथड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आंसर तो आ जाता है पर लेट आता है. फिर हमने कौन सा देखा? शॉर्टकट एज्यूम्ड मीन मेथड देखा, उसमें भी सर ठीक है. हमने देखा सर जो एक्साई दे रखे हैं ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो व्हाट बीइंग सजेस्टेड? स्टेप डेविएशन. तो इसलिए मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, चॉइस इज योर. बोर्ड में कभी स्पेसिफिक आज तक ना लिखा आया है, कभी मुझे लगता है ना कभी आएगा कि फाइंड द मीन बाय शॉर्टकट मेथड. नहीं, ऐसा नहीं है, खुला फ्रीडम होगा. चॉइस इज टोटली योर्स, आपकी चॉइस होगी. अब क्या है, सीखने अगर आ गया फिर ये भी प्रॉब्लम है, बोर्ड का कुछ पता नहीं है. इसलिए आपने क्या करना है, सारे मेथड सीखने हैं पर मास्टरी किसकी करनी है? जिसमें आपका आंसर सही आए और जल्दी आए. स्पीड प्लस एक्यूरेसी. द थिंग इज सही आए और जल्दी आए. कई बार आंसर सही आ रहा है पर देर में आ रहा है, कई बार आंसर देर में आ रहा है ना जी, जल्दी उसका कोई फायदा नहीं है, गलत आ रहा है. इसलिए सुनाओ ui क्या है? di अपॉन h. हमने देखा सर माइनस करके भी बात नहीं बनी, फिर क्या कर देते हैं? अगला हथियार डिवाइड. तो देखो व्हेन इट इज अबाउट टेकिंग कॉमन, तो हमने देखा यहाँ 10 तो है ही है. कौन है इनका? 20. कौन है? सारे के 20 से डिवाइड होते हैं सर. जब डिवाइड करने पे आ ही गए तो क्यों ना 20 से डिवाइड कर दें. जब छोटा बनाने पे आ ही गए, साइज छोटे पे, तो क्यों ना उसी से कर दें. अंडरस्टैंड? तो इसलिए सबको डिवाइड कर दो 20 से. करो जरा, इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? -5. आगे -4, -1, 0. ये देखो ये मजाक है. अब तो मजाक बन गया ये. ठीक है, हाँ जी, -1 2 लिखा है. आगे बोलो. हाँ जी, 1, हाँ 4, 5. ये देखो. अब अगला बताइए क्या करना है? FIUI. अगला क्या होगा कॉलम? दिस इज द फाइनल कॉलम, FIUI. आई होप कर दोगे. कितना आया? -35, 14, 4, 96. No, 56. 19, 2, 38. This is 0.
दिस विल बी 20, दिस इज 40 एंड दिस इज 25। जल्दी से इनका सम कर डालो, FI UI का सम कर दो। लास्ट वाले कॉलम का ही हमेशा सम होता है, बाकियों का सम करने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्टेज। So the sum of the last column is -44. Now अब फॉर्मूला याद करवाने का भी ये तरीका होता है, रट तो सकते नहीं है, ठीक है। अब जो जो चीजें दी थी वो वापस लेनी है, सीधा ये याद रखना कि जो जो चीजें दी थी वो क्या करनी है, वापस लेनी है। जैसे भी हमने शॉर्टकट मेथड देखा, हमने माइनस किया था, फॉर्मूले में प्लस कर दिया। यहाँ क्या किया, यहाँ डिवाइड किया है, तो क्या होगा, डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको फॉर्मूले भी याद आ जाएं, याद रहे। तो फॉर्मूला क्या होने वाला है इसका, मीन इज इक्वल टू A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। क्या होगा, इंटू H होगा। और यहां ऐसे करके फटाफट से पुट इन द वैल्यूज, गेट द आंसर। A अगेन इज 900, वी गॉट दिस एज -44, दिस इज 100 इंटू 20, ठीक है जी, कैंसिल हो गया। अगेन इट इज 900 माइनस 8.8, द आंसर इज 891.20। अगेन इट्स प्रूव दैट इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेथड आंसर विल रिमेन एग्जैक्टली सेम। डेसिमल का भी फर्क नहीं पड़ा, आंसर बिल्कुल सेम आया। एक ही क्वेश्चन को हमने तीनों तरीके से देखा कि कैसे हम कर सकते हैं। स्पीक अप द फॉर्मूला, A प्लस सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। अब जो नहीं बोल रहे हैं वो 10 बार बोलेंगे।